دوستو، وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو بڑے بڑے فرعون صفت حکمران بھی خاک میں مل جاتے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ اقتدار کا سورج کبھی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا۔ بنگلہ دیش کی سیاست میں گزشتہ چند مہینوں کے دوران جو طوفان برپا ہوا ہے، اس نے نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک وزیر اعظم کے استعفے یا ملک چھوڑنے کی نہیں ہے، بلکہ یہ کہانی ہے طاقت کے نشے، عوام کے غصے، بین الاقوامی سازشوں اور انصاف کے کٹھیرے میں کھڑی ایک ایسے رہنما کی جسے کبھی بنگلہ دیش کی سب سے طاقتور خاتون سمجھا جاتا تھا۔ شیخ حسینہ واجد، جو کچھ عرصہ پہلے تک اپنی حکومت کو ناقابل تسخیر سمجھتی تھیں، آج وہ بھارت میں پناہ گزین ہیں، اور ان کے اپنے ہی ملک کی عدالت نے انہیں انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب ٹھہراتے ہوئے سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ یہ خبر کسی دھماکے سے کم نہیں تھی، لیکن اس کہانی میں اصل موڑ تب آیا جب افریقہ کے ایک نڈر اور نوجوان لیڈر ابراہیم تراورے نے اس معاملے میں مداخلت کی اور بھارت کو ایک سخت پیغام بھیج کر عالمی سیاست میں ہلچل مچا دی۔ اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، جب بنگلہ دیش کی سڑکیں طالب علموں کے نعروں سے گونج رہی تھیں۔ شروعات تو ایک بہت ہی عام سے مطالبے سے ہوئی تھی، جو کوٹا سسٹم میں اصلاحات کے حوالے سے تھا، لیکن دیکھتے دیکھتے یہ چنگاری ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں تبدیل ہو گئی۔ جولائی اور اگست کے مہینوں میں بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا وہ کسی بھی جمہوری ملک کے ماتھے پر کلنک کی طرح تھا۔ طلباء اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکلے تھے، لیکن جواب میں انہیں گولیوں، آنسو گیس اور لاٹھیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ شیخ حسینہ کی حکومت نے طاقت کا بے دریغ استعمال کیا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں نوجوان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ حکومت کا خیال تھا کہ وہ ڈرا دھمکا کر اس آواز کو دبا دیں گے، لیکن خون جب بہتا ہے تو وہ جمتا نہیں بلکہ تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ عوامی غصہ اتنا بڑھ گیا کہ شیخ حسینہ، جو 15 سال سے زائد عرصے تک اقتدار پر قابض رہیں، اپنی جان بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر بھارت فرار ہونا پڑا۔ شیخ حسینہ کے بھارت جانے کے بعد بنگلہ دیش میں عبوری حکومت قائم ہوئی، اور وہ عدالتیں جو کل تک خاموش تھیں اب انصاف کرنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ 17 نومبر 2025 کا دن بنگلہ دیش کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جب انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل نے اپنا فیصلہ سنایا۔ یہ وہی ٹریبیونل ہے جسے خود شیخ حسینہ نے ماضی کے جنگی جرائم کی تحقیقات کے لیے بنایا تھا، لیکن قدرت کا کھیل دیکھیے کہ آج اسی ٹریبیونل نے انہیں انسانیت کے خلاف جرائم، قتل عام اور نسل کشی جیسے سنگین الزامات کے تحت سزائے موت کا حکم دے دیا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ جس طرح ریاستی طاقت کا استعمال کر کے معصوم لوگوں کا خون بہایا گیا، وہ سیاست نہیں بلکہ جرم ہے، اور اس کی سزا موت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی۔ اس فیصلے کے آتے ہی بنگلہ دیش کی حکومت نے فوری طور پر بھارت سے رابطہ کیا اور ایک سرکاری خط کے ذریعے مطالبہ کیا کہ مجرمہ کو ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ اسے اس کے کیے کی سزا دی جا سکے۔ اب یہاں سے بھارت کے لیے ایک بہت بڑی مشکل کھڑی ہو گئی۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات ہمیشہ سے بہت قریبی رہے ہیں، اور شیخ حسینہ کو بھارت کا سب سے بہترین دوست سمجھا جاتا تھا۔ جب حسینہ مشکل میں تھیں تو انہوں نے بھارت کا رخ کیا، اور بھارت نے انہیں پناہ بھی دی۔ لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ بنگلہ دیش میں حکومت بدل گئی ہے، اور وہاں کے عوام بھارت کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ ایک مجرم کا ساتھ دے گا یا انصاف کا۔ بھارت کا پہلا رد عمل بہت محتاط تھا۔ بھارتی دفتر خارجہ نے کہا کہ ہم نے نوٹس لے لیا ہے اور ہم خطے میں امن چاہتے ہیں، لیکن سفارتی زبان میں اس کا مطلب یہ تھا کہ بھارت ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر پایا۔ بھارت پھنس چکا ہے، کیونکہ اگر وہ حسینہ کو واپس بھیجتا ہے تو دنیا کہے گی کہ بھارت نے اپنے دوست کو مشکل وقت میں دھوکہ دیا، اور اگر وہ انہیں واپس نہیں بھیجتا تو بنگلہ دیش کے ساتھ اس کے تعلقات ہمیشہ کے لیے خراب ہو سکتے ہیں۔ اسی کشمکش کے دوران جب دنیا خاموشی سے تماشا دیکھ رہی تھی، برکینا فاسو کے نوجوان فوجی حکمران ابراہیم تراورے نے خاموشی توڑ دی۔ ابراہیم تراورے، جو افریقہ میں سامراجی طاقتوں کے خلاف مزاحمت کی ایک نئی علامت بن کر ابھرے ہیں، انہوں نے بھارت کے نام میں کھلا خط لکھ کر سب کو چونکا دیا۔ تراورے کا لہجہ سفارتی نرمی والا نہیں بلکہ ایک انقلابی لیڈر والا تھا۔ انہوں نے اپنے خط میں صاف صاف لکھا کہ بھارت کو اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس طرف کھڑا ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ شیخ حسینہ پر صرف سیاسی مقدمات نہیں ہیں، بلکہ ان پر معصوم بچوں، بوڑھوں اور نوجوانوں کے قتل کا الزام ہے۔ تراورے نے لکھا کہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، سیاست کا نہیں۔
उन्होंने भारत को खबरदार किया कि अगर आज ताकतवर हुक्मरान को उसके जुराइम के बावजूद बचा लिया गया तो आने वाली नस्लें कभी इंसाफ पर यकीन नहीं करेंगी। उनका कहना था कि हम अफ्रीका के लोग और दुनिया भर के मजलूम अवाम एक मिसाल कायम करना चाहते हैं कि जुल्म करने वाला चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। अब यहाँ से भारत के लिए एक बहुत बड़ा अखलाकी दबाव बन चुका है। भारत जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है और ग्लोबल साउथ यानी तरक्की याफ्ता ममालिक की आवाज़ बनने की कोशिश करता है, उसके लिए तरावरे के अल्फाज को नज़रअंदाज करना आसान नहीं है। तरावरे ने यह बात भी वाज़ेह की कि अगर भारत ने हसीना को पनाह दी तो ये इस बात का सबूत होगा कि ताकतवर ममालिक सिर्फ अपने मफादात देखते हैं और उन्हें खून की कोई परवाह नहीं होती। ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि अफ्रीका और मुस्लिम दुनिया के कई ममालिक अब इस मामले को गौर से देख रहे हैं। ये मामला अब सिर्फ दो पड़ोसी मुल्कों का नहीं रहा, बल्कि ये एक बैनुल-अक़वामी इंसाफ का मसला बन चुका है। दूसरी जानिब अगर हम कानूनी पहलुओं का जायजा लें तो भारत और बांग्लादेश के दरमियान मुजरिमों के तबादले का एक मुआहिदा यानी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी मौजूद है। ये मुआहिदा 2013 में हुआ था और इसके मुताबिक अगर कोई मुजरिम दूसरे मुल्क में पनाह लेता है तो उसे वापस करना जरूरी है। लेकिन इस मुआहिदे में कुछ ऐसी शकें मौजूद हैं जो भारत को इनकार करने का मौका देती हैं। मुआहिदे की शक नंबर 6 के मुताबिक अगर जुर्म की नौइयत सियासी हो तो मुल्क मुल्जिम को वापस करने से इनकार कर सकता है। अब बहस ये हो रही है कि क्या शेख हसीना के इक़दामात सियासी थे या नहीं। बांग्लादेश की मौजूदा अबूरी हुकूमत और अवाम का कहना है कि हज़ारों लोगों पर गोलियां चलवाना, उन्हें लापता करना और रियासती इदारों को कत्ले आम के लिए इस्तेमाल करना सियासी गलती नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक भी नस्ल कशी और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों को सियासी जुर्म नहीं माना जाता। इसलिए अगर भारत इस शक का सहारा लेता है तो उसे आलमी सतह पर तनकीद का सामना करना पड़ सकता है। मुआहिदे की एक और शक आर्टिकल नंबर 8 भारत को यह इख्तियार देती है कि अगर उसे लगे कि मुल्जिम को वापस भेजने पर उसकी जान को खतरा है या उसे मुनसिफाना ट्रायल नहीं मिलेगा तब भी हवालगी रोकी जा सकती है। शेख हसीना और उनके वकला मुसलसल यही कह रहे हैं कि बांग्लादेश में बनने वाला ट्रिब्यूनल एक ढोंग है और ये एक कंगारू कोर्ट है जो सिर्फ इंतकाम लेने के लिए बनाया गया है। हसीना का कहना है कि उन्हें अपना दिफा करने का मौका नहीं दिया जा रहा और ये सारा अमल सियासी इंतकाम है। भारत के साबिक सफारतकार और तज्जिया निगार भी यही मशवरा दे रहे हैं कि हसीना को वापस नहीं भेजना चाहिए क्योंकि बांग्लादेश के मौजूदा हालात में उनकी जान महफूज नहीं होगी। उनका कहना है कि भारत ने हमेशा अपने दोस्तों का साथ दिया है और अगर हसीना को वापस भेज दिया गया तो मुस्तकबिल में कोई भी लीडर भारत पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन सिक्के का दूसरा रुख ये है कि अगर भारत इनकार करता है तो इसके नुकसानात क्या होंगे। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है और दोनों ममालिक के दरमियान 4000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सरहद है। अगर ढाका में भारत मुखालिफ जज्बात बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर भारत की सिक्योरिटी पर पड़ेगा। माजी में हम देख चुके हैं कि जब भी बांग्लादेश में भारत मुखालिफ हुकूमत आई है, भारत के शुमाल मशरिकी रियासतों में शोरिश बढ़ी है और सरहद पार से दरअंदाजी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। इसके अलावा बांग्लादेश की मौजूदा अबूरी हुकूमत जिसकी सरबराही डॉक्टर मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, उनके ताल्लुकात मगरबी ममालिक से बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो चीन और पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। अगर भारत ने अवामी जज्बात को नज़रअंदाज किया तो बांग्लादेश मुकम्मल तौर पर चीन के कैंप में जा सकता है, जो भारत के लिए स्ट्रेटेजिक लिहाज से एक डरावना ख्वाब होगा। अवाम की अदालत में तो फैसला हो चुका है। बांग्लादेश के गली कूचों में लोग अब भी गुस्से में हैं। वो माएँ जिनके बेटे इन मुजाहियों में मारे गए वो इंसाफ की मुंतज़िर हैं। उनके लिए शेख हसीना कोई लीडर नहीं बल्कि उनके बच्चों की कातिल हैं। जब इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने सज़ाए मौत का फैसला सुनाया तो ढाका की सड़कों पर जश्न का समा था। लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे और शुक्राने के नफल अदा कर रहे थे। ये जज्बात बताते हैं कि नफरत कितनी गहरी हो चुकी है। ऐसे माहौल में इब्राहिम तरावरे जैसे लीडर की हिमायत ने इन लोगों को मजीद हौसला दिया। तरावरे ने मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों को भी ललकारा है कि वो खामोश क्यों हैं। उन्होंने कहा कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना हर इंसान का फ़र्ज़ है और अगर आज हम खामोश रहे तो तारीख हमें माफ़ नहीं करेगी। ये सूरत हाल शेख हसीना के लिए भी इंतहाई हैरान कुन है। वो खातून जिन्होंने अपने वालिद शेख मुजीबुर रहमान की मिरास को संभाला और मुल्क पर बिला शिरकत गैर हुकूमतरानी की, आज वो बेवतन है
वो कहती हैं कि मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक मुल्क में जमहूरियत बहाल नहीं होती। लेकिन सवाल ये है कि क्या अब उनके लिए वापसी का कोई रास्ता बचा है? इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल, जिसे उन्होंने खुद अपने मुखालिफिन को सजा देने के लिए इस्तेमाल किया था, आज वही इदारा उनके गले का फंदा बन गया है। ये कुदरत का एक ऐसा इंतकाम है जिसकी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। वो शायद सोचती होंगी कि काश उन्होंने ताकत के नशे में अवाम की आवाज़ को ना दबाया होता, काश उन्होंने बातचीत का रास्ता इख्तियार किया होता। लेकिन अब काश का वक्त गुजर चुका है। भारत की अंदरूनी सियासत में भी इस मसले पर बहस जारी है। कुछ लोगों का ख्याल है कि भारत को इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए हसीना को बांग्लादेश के हवाले कर देना चाहिए, ताकि खित्ते में एक मिसाल कायम हो कि कोई कानून से बालातर नहीं। लेकिन ज़्यादातर तज्जिया निकारों का ख्याल है कि मोदी हुकूमत ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे ये तासुर मिले कि भारत दबाव में आ गया है। हो सकता है कि भारत हसीना को किसी तीसरे मुल्क भिजवाने की कोशिश करे, ताकि ना तो बांग्लादेश से ताल्लुकात ख़राब हों और ना ये इल्ज़ाम लगे कि भारत ने पनाहगज़ीन को दुश्मनों के हवाले कर दिया। लेकिन इस वक्त हसीना का पासपोर्ट मनसूख हो चुका है और बहुत कम ममालिक ऐसे हैं जो इस सियासी तूफान में उन्हें कबूल करने को तैयार हों। इब्राहिम तरावरे के बयान ने इस पूरे मंजरनामे में जो नई जान डाली है, इससे एक बात तो वाज़ेह है कि अब दुनिया बदल रही है। अब सिर्फ बड़ी ताकतों की मर्जी नहीं चलती, बल्कि अफ्रीका और एशिया के छोटे ममालिक भी अपनी खुददारी के साथ खड़े हो रहे हैं। तरावरे का ये कहना कि ताकतवर हमेशा नहीं जीतता, दरअसल मौजूदा आलमी निज़ाम पर एक तंज है। वो याद दिला रहे हैं कि अवाम की ताकत सबसे बड़ी होती है। जुलाई की तहरीक में बांग्लादेश के तुलबा ने जिस बहादुरी का मुजाहरा किया, उसने साबित कर दिया कि टैंकों और बंदूकों से नजरियात को शिकस्त नहीं दी जा सकती। आने वाले दिन बहुत अहम हैं। क्या भारत अपने कानूनी और इखलाकी फराइज के दरमियान तवाजुन कायम कर पाएगा? क्या, और सबसे अहम सवाल ये कि क्या इब्राहिम तरावरे की ललकार भारत के ऐवानों में कोई असर दिखाएगी? बज़ाहिर ऐसा लगता है कि भारत फिलहाल वक्त हासिल करने की हिकमत अमली अपनाएगा, यानी वेट एंड वॉच। वो देखेगा कि बांग्लादेश में ऊंट किस करवट बैठता है और क्या शेख हसीना के खिलाफ मजीद सबूत सामने आते हैं। लेकिन एक बात तय है कि हसीना की वापसी या अदम वापसी का फैसला जनूबी एशिया के मुस्तकबिल की सियासत का रुख मुतय्यन करेगा। अगर उन्हें वापस ना किया गया तो दोनों ममालिक के दरमियान एक ऐसी सर्द जंग शुरू हो सकती है जो दहाइयों तक जारी रहेगी और जिसका फायदा सिर्फ खित्ते के दुश्मनों को होगा। आखिर में हमें यह सोचना होगा कि इख्तिदार, ताकत और रोब सब आर्जी चीजें हैं। असल चीज वो इंसाफ है जो मुआशरे की बुनियाद होता है। शेख हसीना की कहानी दुनिया भर के हुक्मरानों के लिए एक इबरत का निशान है। ये बताती है कि जब आप अवाम से कट जाते हैं और अपनी अना के खौल में बंद हो जाते हैं तो फिर आपका इंजाम ऐसा ही होता है। बुर्किना फासो से उठने वाली आवाज ने हमें यह भी सिखाया है कि जुग्राफियाई सरहदें इंसाफ की राह में रुकावट नहीं होनी चाहिए। इंसानियत का दर्द साझा होता है। आज बांग्लादेश का नौजवान जिस तब्दीली की उम्मीद लगाए बैठा है, उसकी तकमील तभी होगी जब उसे यकीन हो जाएगा कि कानून की नज़र में वजीर आज़म और एक आम शहरी बराबर हैं। भारत के लिए भी ये इम्तहान की घड़ी है कि वो दोस्ती निभाता है या इंसाफ का साथ देता है। इस पूरे ड्रामे का ड्रॉप सीन क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस कहानी ने खित्ते की सियासत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है।